इशू था तो नहीं जा रही थी, पता नहीं। So, welcome all of you for the next session regarding to exponential distribution. हेलो And my सर। yes, please. सर लैब बुक में सर एक एक्सपेरिमेंट 5 सर मिला मेरे को अभी। तो सर उसमें से नीचे उसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, तो वो करना था क्या? फिर से बोल। सर एक्सरसाइज 5 है सर एक। एक्सरसाइज 5 है, हाँ। सर वो भी लैब बुक में करनी थी क्या? No. Exercise 5 must be for the two random variables, और two random variable हमारे सिलेबस पे नहीं है, सो वो नहीं करनी। उसमें से कितना करना है मैंने बता के रखा है आपको। बट राइट नाउ टुडे I'm just worried about exercise 2A, 2B, 2C, exercise for the binomial, then after Poisson, and then after normal, okay? आज वही देखना है। वो बेसिक प्रोबेबिलिटी ठीक है, वो तो हम कर चुके हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। This is important, okay? So let me continue with my today's session. Uh, Exponential distribution, exponential variant. We know that there is a fixed relation, there is a defined relation between Poisson and exponential. Exponential distribution is a kind of inverse of the Poisson variant. Okay, and in the Poisson, we were worried. We are concerned about the events per single time, events per single unit of time, and in the exponential we are concerned about the time per single unit. Okay, or in other words, we can say that exponential variate is actually a time between two Poisson process. दो Poisson process के बीच का जो time है ना, that particular time, that time is in exponential distribution. So यहाँ पे जो हमारा x है, जो जिसको हम बोल रहे हैं कि this x is exponential variate, that x is actually the time between two Poisson processes. So this is a way, this is a kind of inverse with the Poisson, okay? And we had already defined its probability density function, that is lambda into e to the power minus lambda x for all x greater or equal 0. In all the rest of the cases, if x is negative, that means क्यों ये जीरो, एफ ऑफ एक्स क्यों जीरो होगा? क्योंकि एक्स, जैसे कि हमने अभी बोला, जैसे कि हमने अभी बात की कि एक्स इज एक्चुअली द टाइम बिटवीन टू पॉइजन प्रोसेस, वो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। दैट इज द रीजन कि एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स इज लेस देन जीरो, वो जीरो हमने लिख के रखा है। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट? दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन if we are dealing with the exponential distribution. So ये याद होना चाहिए हर किसी को कि what is the probability density function, उसका probability function क्या रहता है exponential distribution का, ये है उसकी फॉर्मूला। यहाँ पे लैम्बडा जो है वो राइट पैरामीटर है। और एक और बात मैंने बोल के रखी थी कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज मेमोरीलेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बोल रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो गजनी है, ये भूल जा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था पास्ट में, वो क्यों ऐसा है, वो आज हम सीखेंगे। इसके बाद हमने डिस्कस किया था, सारे पैरामीटर हमने डिस्कस कर लिए हैं। किसी को याद है व्हाट इज द मीन फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन? कोई बताएगा मुझे? ये मैंने डिस्कस कर लिया था लास्ट लैब में। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या रहता है? अगर कोई बता पाए तो अच्छी बात है। भारती, क्या आप बता पाओगे बेटा व्हाट वाज द मीन फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन? मीन की वैल्यू मानी कि एक्सपेक्टेशन क्या होती है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फॉर द exponential distribution? Bharti, are you there? Bharti, Meghna? हाँ Yes, Bharti, sir. याद है बेटा तुझे? Sir, 1 by lambda. Yes, 1 upon lambda. There is an expected value if my x is exponential variate. Okay. फिर उसका variance क्या था, किसको याद है? What is the variance of x? Lambda square. Yes, perfect. 1 upon lambda square. If variance is 1 upon lambda square, तो standard deviation निकालना बहुत ही आसान है। Standard deviation will be 1 upon lambda once again, because standard deviation is nothing but a positive square root of variance. Is it? So ये दो बहुत ही important है। Standard deviation, expected value for the distribution, 1 upon lambda, 1 upon lambda। और एक बात हमने देखी थी कि x equals to 0 is a mode। ये है हमारा mode इसके लिए, तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट मी टेक यू फर्दर। स्टैंडर्ड डेविएशन, यस। मोड भी हमने डिस्कस किया कि x इक्वल्स टू 0 इज द मोड फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन तो मीन की जरूरत नहीं है इनको। फिर एग्जांपल स्टार्ट किए हमने एंड वी हैड ऑलरेडी गॉन फॉर द फर्स्ट वन। ये फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया था। सो लेट मी टेक यू टुवर्ड्स द सेकंड वन। यस, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। Let
me pick my pen. Let x be an exponential random variable. It is clearly mentioned in the instruction that we are dealing with the exponential. Observe this. Let x be an exponential random variable with probability density function. इसका probability density function कुछ इस तरीके से है. F of x equals to one of the unknown c e raised to minus 2x. If x is greater or equal 0, there's a kind of typo over here. It must be greater or equal 0. And for all the other cases, that means if x is less than 0, then f of x will be 0. So this is a function which we can say this is probability density function for the exponential random variable. Now what we are supposed to find, we are going to solve two questions. First is that we are finding probability that x is greater than 2, strictly greater than 2. Second, we are looking for probability that x is less than 1 upon c, where c is constant right now for us, c is unknown. So first we need to identify the value of c. पहले हम c identify करेंगे कि भाई ये c की value क्या है. Once we are having a value of c, then we may proceed for the first and second question. So here, first we need to identify this unknown c. अब कोई बताएगा मुझे ये c में कैसे identify करूं? You need to use one of the tactic from the first unit. पहले unit Sir, basics of probability में. Yes, please. Yes. सर इंटीग्रेट करेंगे टिल 0 to infinity एंड उसको इक्वल कर देंगे 1 से, क्योंकि क्यों? summation, बता क्यों? because summation of all the probability for each and every value of x will be 1 for probability density function. You're absolutely correct. If we are dealing with the probability density function, तो हमको पता है उसका पूरा इंटीग्रेशन. यस, एक करेक्शन में करूंगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक उसका इंटीग्रेशन f of x जो है वो 1 होगा. यस सर बट हियर अदरवाइज 0 है, तो मतलब हाँ, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट में वो फंक्शन डिफाइन नहीं, तो इस इंटीग्रेशन को हम मॉडिफाई कर लेंगे, इसको दो पार्ट में ले जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से 0, देन आफ्टर 0 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से 0 वाला पार्ट 0 निकलेगा. So you are absolutely correct. We need to integrate. We are having one of the information that this function is probability density function. तो उसकी सारी probability का जो addition होता है, summation होता है, वो 1 होता है, वो हमको पता है. So with the use of that particular knowledge, we will able to get the value of c. उससे मुझे c मिल जाएगा. And once we are having a c, बात खत्म. तो ये question बहुत ही आसान हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. So let's try to get the value of c first. As we know that this is a probability density function. ये जो है वो probability density function है, ये बोल के रखा है question में. तो probability density function के पास दो characteristic है. कोई अगर probability density function के साथ डील करे या तो फिर probability mass function के साथ डील करे, ये डिफर हो रहा है continuous random variable से या तो फिर discrete random variable से. अगर discrete के साथ बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे probability mass function, और उसके लिए कुछ फॉर्मूला ऐसी थी, summation p of x must be 1, ऐसा था. ठीक है, अगर probability mass function है तो. अगर probability density function है तो उसके लिए था integration f of x dx must be 1, और वो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हमको पता है. सो दिस इज फॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दिस इज फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. हम अभी बात कर रहे हैं डेंसिटी फंक्शन की, तो वी गोना यूज दिस पर्टिकुलर, ओके, ये इसका यूज करेंगे. चलिए, तो एज इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, द इंटीग्रेशन रनिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी फंक्शन f of x, वो 1 ही होगा. इट विल बी ऑलवेज 1. ये हमारे पास है, इट विल बी श्योरली 1. नाउ माय फंक्शन this f of x is purely defined on both that side, minus infinite से infinite तक define ही है, पर minus infinite से 0 मानी कि नेगेटिव पार्ट में वो फंक्शन है 0, और पॉजिटिव पार्ट में वो फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, c into e raised to minus 2x. तो मैं क्या करूंगा, इसके दो पार्ट करूंगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 करूंगा, दूसरी बार इसको 0 से इनफाइनाइट तक ले जाऊंगा, और मुझे पता ही है ये 1 है, पर माइनस इनफाइनाइट से 0 में फंक्शन ही 0 है, तो ये पूरा पार्ट निकल जाएगा. सो 0 से इनफाइनाइट में फंक्शन डिफाइन किस तरीके से, दैट इज c टाइम्स e रेज़ टू माइनस 2x. अब इसका छोटा सा इंटीग्रेशन निकालना है और उसको इक्वेट करना है 1 से. If it is equals to 1, then surely I will able to get the value of c. अब ये इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल में जो भी आप इंटीग्रेशन करेंगे बहुत ही आसान रहेगा. एक ही फॉर्मूला है, e टू द पावर माइनस x, तो इससे इंटीग्रेशन निकलेगा e रेज़ टू माइनस 2x का इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू माइनस 2x डिवाइड बाय माइनस 2.
और द लिमिट 0 to infinite, और उसको इक्वेट करना है 1 से. लेट मी रिजॉल्व दिस. इसकी जरूरत नहीं है अभी. एक मिनट. चल भाई निकल जा तू. निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा. यस देयर इज. सो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सी एज रेज, ये -2 को मैं बाहर ले लूं, सो इट इज -c/2. अब इसमें एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट रिप्लेस कर दो. अपर लिमिट x की जगह पे एक बार इनफाइनाइट, दूसरी बार 0. सो e raised to 2 into infinite, e raised to minus infinite, that will be the upper limit, minus lower limit x की जगह पे 0, so it will be e raised to -0. -0 का कोई मतलब नहीं. e raised to 0 is equals to 1, and we all know that e raised to minus infinite is always 0. So ये हो गया -c/2, 0 minus anything raised to 0 is 1, so e raised to 0 is 1 equals to 1. So ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस c/2 equals to 1. मानी कि c की वैल्यू क्या आएगी, कौन बताएगा मुझे? c will be 2. Yes. So once we are having a value of c, अगर मेरे पास c है तो ये फंक्शन में फिर से लिखूंगा, ठीक से लिखूंगा. आप देख, डू वी हैव एनी क्वेरी अप टू दिस? क्या यहाँ तक कोई क्वेरी है, या तो फिर मैं ये सारी इरेज कर दूं एक बार? लेट मी नो ऑन द चैट बॉक्स. आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? क्या हर कोई बच्चा मेरे साथ है? कोई क्वेरी है? क्वेरी है या नहीं है, डालिए एक बार चैट बॉक्स में. आर यू क्लियर और नॉट राइट नाउ? क्विकली सभी को ये बात क्लियर है? जल्दी से all of you will drop a message on the chat box right now. मेघना, सुशील, विभूषा, यश, बाकी के लोग सो रहे क्या? आदित्य, भारती, भौतिक, दिव्य, ईशा, जानवी, जय, मोहम्मद, प्रियंक, सुशील, विभूषा. So it's clear. Let me erase this ink. And once we are clear with the c, कि मुझे पता है कि c की वैल्यू 2 है, तो अगर अब मैं फंक्शन लिख पाऊंगा f of x it will be 2 e raised to minus 2x. इसी की जरूरत पड़ेगी, वो x less than 0 का लिखना ही नहीं है, छोड़ दीजिए, उसका कोई काम ही नहीं है. So this is my probability function, probability density function downwards, and what we are looking for first question is that probability that x is greater than 2. चलिए कौन बताएगा? probability that x is greater than 2 मैं कैसे करूं? भारती तू बता दे बेटा. Either Bharti or Mohammed, any of you. Probability that x is greater than 2, इसके लिए कौन सा इंटीग्रेशन करूंगा? चलिए जल्दी से. Unmute yourself and talk to me. Bharti. Ma'am, sir, sorry. Integration 1 minus. तू रुक जा. Okay. विभूषा, can you Yes, sir. unmute yourself? Yes, बता बेटा इसके लिए क्या करो? तू साथ में थी कि नहीं थी? हाँ या ना बोल दे. I was there. Then we were just Yes, supposed sir. we are just supposed to find probably that x is greater than 2. तो इसके लिए क्या होगा इंटीग्रेशन बता. दो से बड़ी कोई भी वैल्यू बेटा, 2 या 2 से बड़ी, 2 to infinite. 2 to Yes, infinite. फंक्शन क्या लिखूं मैं, बोल. अब तो बोल दे, मैंने तो लिख 2 दिया. e raised हाँ to minus. चल करो आप इंटीग्रेशन. 2 ही करवा. 2 को बाहर रख दूं, रख दिया. e raised to minus 2x का इंटीग्रेशन बता. Minus 2x. By e raised to minus 2x by minus 2. बाय -2. ओके, लिमिट क्या लिखूं? 2 से इनफाइनाइट. ठीक है, ये दो कैंसिल कर दूं, नेगेटिव साइन बाहर रख दूं, Yes. x की जगह पर एक बार इनफाइनाइट, तो ये होगा e raised to minus इनफाइनाइट. दूसरी बार अगर मैं 2 लिख दूं, e raised to -4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, e raised to minus इनफाइनाइट 0, तो होगा e raised to -4 मानी कि 1 by e raised to 4. ये कैलसी से निकालना बहुत ही आसान है, जो भी उसकी वैल्यू आ रही है कोई बड़ी बात नहीं है. So this will be the solution of first. अब चल तू ही बता, चली मत जा. फर्स्ट का आंसर तेरा इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है मेरे लिए. अब probability that x is less than 1 upon c, ये चाहिए. चल 1 upon c, c की वैल्यू 2 है, वो पता है. रुक जाओ, I'm having one of the call. I need 1 minute please. This is very important. I'll be back.
Sorry for the disturbance. So who will help me for the second one? Probably that x is less than 1 upon c. We are having a value of c. C is 1 by 2. Sorry, c is 2. So we are looking for probably that x is less than 1 by 2. अब 1 by 2 के लिए फॉर्मूला क्या निकलेगी? चलिए कौन बताएगा मुझे? Who will help me for this? Meghna, can you? मेघना, are you there? Yes, बता बेटा. Yes, चल sir. क्या निकलेगी फॉर्मूला? आप बता. 1/2 से छोटा Sir, देख. integration अंदर. वाला- Yes, 1/2 से छोटा. 1/2 से छोटा मानी क्या हो सकता है? Sir, minus infinity is 1 by Yes, 2. perfect. Minus infinite to 1 by 2. The same function will be there. 2 into e raised to minus 2x dx, is it? अब ये तो डायरेक्टली नहीं होगा बेटा. इसके लिए तो दो पार्ट करने पड़ेंगे. चल तू बता क्या दो पार्ट करूं इसके. Sir, minus infinity से 0 and 0 से 1 by 2. परफेक्ट. माइनस इंफिनिटी 0 प्लस 0 से 1/2. अब माइनस इंफिनिटी से 0 में तो फंक्शन ही 0 है, is it? तो ये तो हाँ. इसका कोई मतलब ही नहीं है. ये तो उसको छोड़ ही दे. सर 0 से 1/2 देखना है. 0 से 1/2 में फंक्शन वही है 2 e raised to minus 2x dx. अब ये जो इंटीग्रेशन है वो डिटो सेम यही होगा ना. कोई बड़ी बात Yes. नहीं है. बोथ दिस आर सेम. फर्क क्या रहेगा? सिर्फ लिमिट का. यहाँ पे था 2 से इनफाइनाइट, यहाँ से है 0, यहाँ पे है 0 से 1/2. तो सेम इंटीग्रेशन है, सेम स्टेप है, बस आपको लिमिट चेंज करनी है और वो सॉल्व तो कैलसी से करना है. इज इट? सो इट इज वेरी वेरी इजी. लेट मी शो यू द होल सॉल्यूशन at once. Kindly go through it. All of you are requested to go through this once. I'm just giving you 30 and 1 minute, 1 whole minute. Please go through it and let me know whether it is clear to you or not. सर अगर फर्स्ट पार्ट में हम 1 में से x p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 को सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर सेम आता. फिर से बेटा. इन फर्स्ट पार्ट अगर हम p ऑफ x ग्रेटर देन 2 को फाइंड करने के बजाय 1 में से p ऑफ x लेस देन क्या लगता है तुझे? सही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए. इज इट? हाँ क्योंकि जो सारी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में ही है. अब हाँ. तूने फाइंड किया 2 से इनफाइनाइट, वो तुझे चाहिए. अब तो 1 में से 0 से 2 वाला बात कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, खत्म. वही होगा आंसर में. कोई Okay. फर्क नहीं आ सकता. सो होपफुली ऑल ऑफ अस आर गेटिंग दिस. अब एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं. देखिए, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल. ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ अभी. यहाँ पे यश, we were finding Yes. probability that x is greater than 2. इसकी जगह पे अगर मैं करूं x is greater than equal to 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. It will be ditto same. I am finding probability that x is less than 1/2. इसकी जगह पे अगर मैं ये करूं probability that x is less than equals to 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आंसर सेम ही रहेगा. Why? Because the same reason, the same thing I had explained in the normal. Normal जो है, normal distribution है, वो भी क्या है? That is also a continuous probability distribution. ये भी continuous probability distribution. और continuous probability distribution में आप probability find कर रहे हो कोई एक constant number के पास, 2 के पास या 2.5 के पास या तो 3 के पास, exact value के पास, तो बहुत ही छोटी आएगी, 0.00000 something. This is very very rare chance to get exact figure. कैसे? जैसे कि मैं अगर आपको पूछूं कि इस मेरे रूम का टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में है, is it? So what is the probability that the room temperature is between 26 to 28? तो कोई एक बड़ा सा फिगर आएगा, एक नोटिसेबल फिगर आएगा. पर अगर मैं पूछूं कि इस रूम का टेम्परेचर एग्जैक्टली 27.89 डिग्री है, तो बहुत ही रेयर चांस है कि इस रूम का टेम्परेचर 27.89 डिग्री है. अगर इंटरवल में बात करते हैं तो दिस इज क्वाइट नोटिसेबल. पर जब कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है तो फिक्स कोई एक नंबर के पास प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है. सो दैट्स दिस इज द रीजन कि इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन p of x is greater than 2, अगर कोई आपसे ये भी पूछे कि प्रोबेबिलिटी दैट x is greater equal to 2, ये क्या होगा, तो ये दोनों बिल्कुल सेम ही होगा. इज इट? अभी हमारे लिए ये दोनों बिल्कुल सेम ही है.
take care for that. Is it? So don't worry about that particular inequality ke whether I'm using strictly less than, strictly greater than, or less than or equals to, greater than equals to. क्या use कर रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Am I clear to all of you? Am I clear? और ये C की वैल्यू और इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 सभी को समझ में आ रहा है. ठीक है? Good. So let me proceed for the third one. Yes, third. Let me read the question for you. The mileage which car owner get with a certain kind of radial tire is random variable having an exponential distribution. Mileage which car owner gets is a exponential variable. Uska mean kya hai? That mean is 4,000 kilometer. Now it is clearly mentioned that we are dealing with exponential distribution. देखिए बहुत ही clear लिखा हुआ है. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. उसका मीन भी दिया हुआ है 4000. इट्स अ मीन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दिस टायर विल लास्ट एट लीस्ट 2000 किलोमीटर एंड एट मोस्ट 3000 किलोमीटर. So if you're going to compare the question number 3 and earlier to question 1 and 2, question 1 और 2 को question 3 से अगर आप कंपेयर करें तो फर्क क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि question 1 और 2 में मैंने फंक्शन दे के रखा था कि दिस इज अ फंक्शन that was defined in the question. अब ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. It is not provided in the example 3. ये नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है? यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पता है. It is clearly mentioned this is exponential distribution. और उसका मीन भी दे के रखा है. मीन इज 4000 किलोमीटर. Forget about the unit. Mean is 4000. Okay. तो हमको पता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन होता है 1 लैम्बडा. इफ 1 लैम्बडा इज 4000 तो आपके पास लैम्बडा की वैल्यू आ गई. लैम्बडा इज 1/4000. Am I clear? Am I clear to all of you? Yes, Are we sir. good? Good, good. So देखिए ये हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू है 1/4000 और पता है कि एक्सपोनेंशियल है, लैम्बडा है हमारे पास. तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसकी फॉर्मेट हमको पता है. वो क्या होता है? लैम्बडा e टू द पावर माइनस लैम्बडा एक्स एल्स 0. कब ये है? if x is greater equal 0, or in all the other cases if x is negative then it is 0. Is it? So we need to prepare our probability mass function here. Sorry, probability density function here. यहाँ पे probability density function दिया नहीं गया है, वो हम प्रिपेयर करेंगे, खुद करेंगे. So this is one of the additional tasks in the example 3. Example 3 में अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है exponential distribution की, तो question 3 आपसे नहीं हो पाएगा. So it is very very important कि आपको ये फॉर्मेट याद हो कि एक्सपोनेंशियल वेरिएट है तो उसके प्रोबेबिलिटी मास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की फॉर्मूला क्या होती है. So using this I'm gonna prepare my probability density function here. F of x is nothing but lambda. Lambda is nothing but 1/4000. It will look like a monster function, but don't worry about that. Minus 1 of lambda. Lambda is 1/4000 into x. That means x divided by 4000. This will be my function if x is greater equal 0. In all the other cases, f of x will be 0 if x is less than 0. So now we are ready to move for the probability. अगर ये है मेरे पास, then we may go for the probability of one of the value of random variable. Now, are we clear up to this? क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? मेघना, विभूषा, भवदीप, यश, ईशा, Yes, sir. प्रियंक, सुशील, मोहम्मद, जय, हर किसी को यहाँ तक क्लियर है? गुड. Now what we are finding? First question क्या है? First sub question. At least 2000. At least 2000. X is my that particular lifetime of a tire. Yes, lifetime of a tire. अब मुझे चाहिए कि वो at least कम से कम 2000 किलोमीटर तक चले वो टायर. That means कम से कम 2000 मानी कि we are finding x is greater than equals to 2000. Yes or no? This is what we are supposed to find. Yes or no? x is greater than equals to 2000. कम से कम 2000 किलोमीटर चले मानी कि probability that x is greater than equals to 2000. अब बहुत ही आसान होगा ये तो भाई.
इससे फाइन कर लीजिए। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगी इसकी फॉर्मूला कौन बताएगा? चलिए अभी जय, कैन यू? जय 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 दकन, आर यू देयर? जय, आर यू देयर? आर यू अटेंडिंग द सेशन? और सिर्फ चालू करके बैठ गया है। हाँ जी, तो बता, अनम्यूट कर अपने आप को, मुझे इसकी फॉर्मूला निकाल के दे। x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2000। चल जल्दी से, कर रहा है, वेट कर रहे हैं हम लोग। आंसर कर रहा है तू कि नहीं कर रहा है? जल्दी बोल दे। किसी और से पूछ लूं क्या? वी आर नॉट हैविंग ऑल डे फॉर दिस। अनम्यूट नहीं होगा? क्यों अनम्यूट नहीं होगा? मूवी में बैठा है क्या? ठीक है, कोई इश्यू होगा। चल केफ, तू बता सकता है? केफ, आर यू देयर? केफ, मोहम्मद केफ, मोहम्मद केफ, मोहम्मद केफ एक बार, मोहम्मद केफ दो बार, मोहम्मद केफ तीन बार। सॉल्व। जाने दो। निधि, निधि जैन, बेटा तू मत बोलना कि इश्यू। निधि, यस सर। कौन बोला? आवाज आ कौन रही है? बात? हाँ, आवाज आ रही है बेटा। यस चल सर। बेटा, प्रोवाइडेड दैट x इज ग्रेटर इक्वल टू 2000 के लिए फॉर्मूला बना के दिखा। चल जल्दी से। बताएगी कि नहीं समझ में आ रहा है? निधि, सर 1/2000। क्या 1/2000? 2000 से इनफाइनाइट वही फंक्शन डालना है जो फंक्शन है मेरे पास। 1/4000 e raised to minus x divided by 4000। Are you good or not? निधि क्या हुआ तुझे बेटा? ये नहीं सर, वो 1/4 थोड़ी सी तबीयत खराब है। 1/4000 बाहर रह गया। देख यहाँ पे रे, कोई बात नहीं। e raised to minus x divided by 4000 का इंटीग्रेशन निकलेगा e raised to minus x divided by 4000। फंक्शन चाहे कितना भी बड़ा हो, डोंट वरी अबाउट दैट, वो बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला है। 1/4000 minus 1/4000 will be in the denominator and formula will limits will be 2000 to infinite। So ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये नेगेटिव साइन बाहर रख दूं। द सिमिलर इंटीग्रेशन विल बी देयर e raised to minus x divided by 4000 और लिमिट होगी इनफाइनाइट और 2000। ठीक है, अगर इनफाइनाइट डालूं तो e raised to minus इनफाइनाइट वो जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2000 डालूं तो 2000 डिवाइड बाय 4000 विल बी 1/2। सो e टू द पावर माइनस 1/2 और आगे की वो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा e raised to minus हाफ। और ये e की पावर माइनस हाफ जो निकालना है, दैट मीन्स 1/√t, वो कैलसी से निकल सकती है। इट इज वेरी वेरी इजी। गेटिंग दिस और नॉट निधि? आसान ही है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। यस सर। हाँ। यस सर। यस सर। चल यश, अब तू आजा बेटा। यस सर। एट बोल, मोस्ट सेकंड के लिए क्या करेंगे? अच्छा, एट वो मोस्ट 4000 बता। 3000। अच्छा यस, हाँ, एट मोस्ट 0 3000। to x 3000 is less than equals to 3000, is it? ज्यादा से ज्यादा 3000 माइनस चलना चाहिए। इन्फिनिटी। हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी से 3000, लेकिन यहाँ पे 0 से लेस देन स्पीड नहीं हो सकती, तो हाँ, सॉरी तो माइलेज, हम तो लेंगे 0 0 से से 3000 ही लेंगे, वही रहेगा सेम। तो ये लिमिट बस चेंज होगी। इंस्टेड ऑफ दिस 0 से 3000 हम लिखेंगे। वो जो भी वो सिंप्लीफिकेशन आएगा वो तो हमको कैलसी से करना है, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इज इट दैट? यस। गेटिंग दिस और नॉट? यस सर। अब देख, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 3000 है या फिर सिर्फ लेस देन 3000 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, so this is one of the word problem related to exponential random variate. Hopefully we all are clear. Let me move for the next one. Before going for the next one, let me show you the whole solution at a time. हर कोई बच्चा यहाँ पे एक बार देख ले पूरा सॉल्यूशन में। यहाँ पे एक साथ दिखा रहा हूँ। All of you are requested to go through it. I am giving you 1 minute. Quickly go through it.
Is it? It is literally same which we had just discussed. इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है जब भी एग्जाम में लिख रहे हो. So take care for that. Let me move for the next question. That is example 4. Now let me read the question for you. Now this is very important question. Take care. The daily consumption of milk in excess of 2000. In excess of 2000 gallon. Not 2000, my mistake. The daily consumption of milk in excess of 20,000 gallon is approximately exponentially distributed with mean 3,000 gallon. The city has the daily stock of 35,000 gallon. What is the probability that 2 days selected at random, the stock is insufficient for both the days? So this is little bit, we can say हटके. तो equation है जो थोड़ा सा हटके than the earlier one. Can any of you will able to explain this question? Just question ही explain करना है. खुद से. I'm not looking for the solution. Any of you? Yes, तू कर सकता है बेटा. देख ले एक बार read कर. Sir, reading. The daily consumption of milk in excess of 20,000 gallon. मानी कि 20,000 गैलन से ज्यादा का जो कंजप्शन है ना, 20,000 तक नहीं, उससे ज्यादा का कंजप्शन है. That particular is in exponential distribution. अगर आज सिटी में 21,000 गैलन की जरूरत है, 21,000 गैलन मिल्क की जरूरत है, तो 20,000 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. 20,000 के बाद वाला जो फिगर है ना, मानी कि 1,000, वो 1,000 है, दैट इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. इन एक्सेस ऑफ 20,000 गैलन, the daily consumption of milk in excess of 20,000 gallon is exponentially distributed. उसका मीन दी के रखा है, मीन इज 3,000 गैलन. अब क्या फाइंड करना है? अब एक स्टॉक की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमारे पास 35,000 का स्टॉक है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टॉक इज इनसफिशिएंट, स्टॉक कम पड़ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी. चलिए, थोड़ा सा लगे, थोड़ा सा डिफरेंट है. अब इसके लिए मुझे करना पड़ेगा दो डिफरेंट वेरिएबल का यूज. आई एम गोना डिफाइन टू डिफरेंट वेरिएबल्स. लेट मी शो यू. Let y be a random variable which denotes the daily consumption of milk consumed in a day. एक दिन में जितने मिल्क की खपत हो रही है, जितने मिल्क का कंजप्शन हो रहा है, that is y. Now, यहाँ पे जो y है वो एक्सपोनेंशियल वेरिएट नहीं है. देखिए, मैंने y को क्या डिफाइन किया कि भाई 2 है डेली कंजप्शन ऑफ मिल्क. एक दिन में अगर 21,000 जा रहा है तो वो पूरा 21,000, दैट इज y. एक दिन में अगर 25,000 मिल्क का कंजम्पशन हो रहा है, दैट होल 25,000 इज y. बट ये मेरा y जो है वो एक्सपोनेंशियल वेरिएट नहीं है. एक्सपोनेंशियल वेरिएट क्या है? 20,000 के ऊपर का जो कंजम्पशन हो रहा है, दैट इज ओनली एक्सपोनेंशियल वेरिएट. सो फॉर दैट हमारा पूरा जो फॉर्मूला हमने बना के रखा है, अब तक जो भी टर्मिनोलॉजी से हम गए हैं, उसमें हमने जो x रखा है ना, वही एक्सपोनेंशियल वेरिएट है. So this is the reason now I am defining my exponential variate. So the new random variable y minus 20,000, जो डेली कंजम्पशन हो रहा है उसमें से 20,000 में निकाल दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो बच रहा है उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल वेरिएट.
सो दिस इज माय एक्सपोनेंशियल वेरिएट। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल वेरिएट है कुछ इस तरीके से डिफाइन है, y माइनस 20,000। अब शायद इसमें आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो, अगर है तो प्लीज बताइए, प्लीज टॉक टू मी। अगर ये नहीं आपके दिमाग में घुस रहा, नहीं समझ में आ रहा है तो बताना प्लीज। यू कैन नॉट टेक दिस क्वेश्चन लाइटली। टेक केयर। सो होपफुली ऑल ऑफ अस आर क्लियर अप टू दिस। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? डाउट है तो बताओ प्लीज, आई कैन एक्सप्लेन इन सम अदर वेज ऑल्सो व्हाई वी नीड टू डिफाइन टू डिफरेंट वेरिएबल्स ओवर हियर। दो वेरिएबल की जरूरत क्या है यह भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो प्लीज बताओ, ड्रॉप अ मैसेज, या तो फिर अनम्यूट करो या तो मैसेज ड्रॉप करो। क्लियर है नहीं है? हेलो, हु इज दिस? यस निधि, प्लीज बताओ बेटा। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, तो एक बार आप प्लीज वापस समझा देंगे? माय वॉइस इज लैकिंग इन बिटवीन। हेलो, सर शायद Can anyone- मेरी हो रही है। आपकी तो हो ही रही है, दूसरे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। मेघना, मोहम्मद, यस यश, सर। यस सर, ब्रेक हो रही है। माय वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन। सर Yes, जब sir. आप एक्सप्लेन कर रहे थे तब हो रही थी, अभी नहीं हो रही थी। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। यस मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन किए, देख, एक है y, एक है x। अब तक तो ऐसा नहीं किया था कभी। एक ही वेरिएबल से हम काम कर रहे थे x, और उसको बोल रहे थे कि दिस इज माय एक्सपोनेंशियल वेरिएट, इज इट? अब पूरी फॉर्मूला हमने x में बना के रखी है तो y में नहीं जाएंगे हम, x को ही डिफाइन करेंगे कि भाई तू ही एक्सपोनेंशियल वेरिएट है। पर मैं डायरेक्ट x को एक्सपोनेंशियल वेरिएट नहीं बोल सकता ना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 20,000 के ऊपर की जो खपत है ना, 20,000 से बड़ी जो कंजप्शन है, वही मानी कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कंजप्शन एंड 20,000, वही एक फिगर जो है, वही मेरा एक्सपोनेंशियल वेरिएट है। ये क्लियरली बोला हुआ है क्वेश्चन में। सो दिस इज द रीजन आई नीड टू डिफाइन टू वेरिएबल x एंड y। अब y मैं कैसे ले रहा हूँ? y इज माय डेली कंजप्शन ऑफ मिल्क, y इज माय डेली कंजप्शन। अब उस y में से 20,000 निकाल दूं तो जो भी बचा, that is my x, and it is clearly mentioned that in excess of 20,000 gallon is exponential variate, is it now? So my question was that, are you getting this? किस तरीके से मैंने y और x डिफाइन किया है, ये समझ में आ रहा है सभी को? This was my question. Clear? All of you are clear with x and y? Then and then we may move forward, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो, good, 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 good. So this is the only reason I need to define two different variable over here. This is one of the standard question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बताना बीच में। Okay, now once I'm good with x, okay, what is x? X is y minus 20,000. अब मीन दे के रखा है यहाँ पे मुझे कि मीन की वैल्यू है, मीन इज 3,000 gallon. Forget about the unit. Mean is 3,000, and we know that if we are dealing with the exponential distribution, the mean का मतलब होता है 1 upon lambda। मानी कि यहाँ से पता चल जाएगा 1 upon lambda की वैल्यू 3,000, मानी कि lambda की वैल्यू 1 upon 3,000। अब once we are clear कि we are in the exponential distribution and lambda भी है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा f of x equals to lambda, that is 1 upon 3,000 e to the power minus lambda x, मानी कि x divided by 3,000 whenever x is greater equal 0, और x less than 0 है तो वो 0 है, वो नहीं डिफाइन करना है, छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत ही नहीं। So this is enough. This is our probability density function for this particular question. Are we good up to this? Good. One more thing we are having. हमारे पास 35,000 का स्टॉक है और हम क्या फाइंड कर रहे हैं? वो स्टॉक इनसफिशिएंट हो जाए, स्टॉक इनसफिशिएंट हो जाए, मानी कि कंजप्शन, फुल कंजप्शन है 35,000 से बड़ा होना चाहिए। दैट मींस वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी दैट फुल कंजप्शन, मेरे पास स्टॉक है 35,000 का और 35,000 से अगर ज्यादा हो गया कंजप्शन तभी स्टॉक इनसफिशिएंट होगा। सो व्हाट आई एम फाइंडिंग दैट फुल स्टॉक मानी कि y is greater than 35,000। अब ये प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि y मेरा एक्सपोनेंशियल वेरिएट नहीं है, y के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, y के लिए कोई पीडीएफ नहीं है मेरे पास। तो क्या करूंगा?
इफ y is greater than 35,000, इसका मतलब प्योरली ये होगा, ये ऐसा कब हो सकता है कि y की वैल्यू 35,000 से बढ़ गई, y को 20,000 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट मींस कि इफ x is 35 minus 25 20,000, माने कि if x is greater than 15,000, तभी ऐसा हो सकता है, हाँ या ना? Are you getting this statement? Here, y is greater than 35,000 is literally equals to x is greater than 15,000. Are you getting this? This is important. Are you getting this? Drop a message on the chat box. Drop a message on the chat box right now. जय और विभूषा दो ही को पता चल रहा है, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? जितनों को पता चल रहा है प्लीज बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से. गुड. Now once we are clear कि we are finding probability that x is greater than 15,000, तो बात खत्म हो गई. ये बहुत ही आसान हो गया. अभी छोटा सा इंटीग्रेशन 15,000 से इनफाइनाइट तक, फंक्शन वही रहेगा 1/3000 e to the power minus x divided by 3000. और ये इंटीग्रेशन फंक्शन चाहे कितना भी बड़ा लगे पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है. 1/3000 बाहर रहेगा, डिनोमिनेटर में 1/3000 आएगा, वो भी उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट बस रिप्लेस करनी है. एक बार इनफाइनाइट, दूसरी बार 15,000 जब रिप्लेस करूंगा तो ये 15,000 divided by 3000, that will be 5. So answer will be e raised to minus 5, as I know. That means 1 upon e raised to 5. और वो कैलसी से निकालना बहुत ही आसान है. Let me show you the whole solution for this. Let me erase all this thing, and this will be the solution. Go through it once, please. क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से देख लीजिए एक बार. You cannot take this question lightly. This is very very good question, a standard question I can say. बहुत important है ये. Drop a message on the chat box whether you guys are getting this or not. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए. You cannot take this question lightly. Huh? This is very very important. Are you getting this perfectly? Okay. So the answer will be for one day. That particular will not affect. यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा हुआ है that 2 days selected. यहाँ पे मैं 5 दिन लिखूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मैं 1 दिन लिखूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मैं 10 दिन लिखूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. जी क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? सोचिए आप एक बार. Why it will not create any issue? There is a question for you. सोच के बताएं. तो वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कि 2 दिन सिलेक्ट किए हुए, 3 दिन सिलेक्ट किए हुए. ठीक है. Rest of the thing is clear to all of you. Good. Let me move ahead for the question number 5. This will be the last question for the exponential. पर इसमें थोड़ी देर लगेगी, कोई बात नहीं.
the time required to repair a machine, the time required to repair a machine is exponentially distributed with mean 2r. Once again, in this question, I had not provided the probability density function, पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन दे के रखा है, मीन माने कि लैम्बडा की वैल्यू 1/लैम्बडा की वैल्यू है, उससे आपको लैम्बडा मिलेगा. Good. The time required to repair a machine is exponentially distributed with mean 2r. Now, there are two sub questions. What is the probability that the repair time exceeds 2r? क्या प्रोबेबिलिटी है कि रिपेयर का टाइम है वो 2 घंटे से बढ़ जाएगा? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द सेकंड इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रिपेयर टेक्स एटलीस्ट 11 आवर्स, रिपेयरिंग का वो जो टाइम है वो कम से कम 11 घंटे का हो, गिवन दैट इट्स डायरेक्शन एक्सिड्स 8 आवर्स. उसको बताने में, डायरेक्शन माने कि उसको समझाने में 8 घंटा लग रहा है, कम से कम 8 घंटे से ज्यादा लग रहा है कि मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई मशीन ऐसे रिपेयर करना है, मशीन ऐसे रिपेयर करना है. तो जब तक मैं समझा रहा हूँ तब तक मशीन रिपेयर स्टार्ट नहीं हुआ, वो रिपेयर नहीं कर रहा है, वो समझ रहा है कि कैसे करना है. तो वो इंस्ट्रक्शन, वो डायरेक्शन का टाइम 8 घंटे से बड़ा हो, फिर दिस इज द कंडीशन. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रिपेयर टेक्स एटलीस्ट 11 आवर्स, कम से कम 11 घंटे लगे. So the second looks little bit weird. ऐसा अभी तक नहीं किया है. This looks little bit weird, is it? ये कुछ अलग लग रहा है, बट वो पहला वाला तो बहुत ही आसान लग रहा है, ये तो हो सकता है बहुत ही आसानी से. चलिए, फर्स्ट के लिए कौन हेल्प करेगा मुझे? हाँ, मैं अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. Yes, चल, sir. तू बोलेगी मैं लिखूंगा. चल जल्दी बोल. सॉल्यूशन. सर पहले तो मीन इक्वल टू 2. मीन इज इक्वल्स टू 2. सोच के देख. हाँ, मीन 2 है. हाँ, फिर वहां से लैम्डा निकालेंगे हम लोग. रुक जाएगा. यस, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पक्की बात है. मीन हाँ, की सर. वैल्यू 2 है, ये दे के रखा है. मीन इज इक्वल्स टू 2 और मीन क्या होता है बेटा? 1/लैम्बडा होता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी? 0.5. 1/2.5. करेक्ट. अब क्या इससे हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख पाएंगे? पक्का लिख हाँ. पाएंगे. चल लिखवा. सर 1/2 परफेक्ट. e to the power minus 1/2x. यस, माने कि -x/2. इज इट? कब? Yes, sir. इफ x इज ग्रेटर इक्वल greater than equal to 0. एंड इट इज 0 if x is less than 0. अगर ये ना लिखे तो भी चलेगा. हाँ, ठीक है. Okay, sir. This is a probability density function. Good. अब पहला क्वेश्चन क्या है देख. Probability that the repair time is exceeds 2 hours. So हमको पहले मेंशन करना चाहिए what is x. X is my exponential variate which represents the repair time. X is nothing but the repair time, is it? तो हम देख रहे हैं कि x जो है वो 2 घंटे से बड़ा होना चाहिए. Exceeds 2 hours, is it? X must be exceed 2 hours. चल लिखवा, क्या करूं मैं? Sir, integration 2 to infinity. Perfect. 2 to infinite, वही फंक्शन Okay. निकलेगा. हाँ, sir. 1/2 e raised to minus x/2 dx, is it? चल जल्दी से करवा दे इंटीग्रेशन. 1/2 बाहर रख दूं मैं. कांस्टेंट बाहर हो जाएगा. Then e to the power minus x/2 और divide by minus 1/2. Perfect. लिमिट होगी 2 to infinity. Perfect. ये 1/2 कैंसिल कर दूं, ये नेगेटिव साइन बाहर लिख दूं. Yes, sir. चल अपर लिमिट अगर x की जगह पे इनफाइनाइट डालूं, इनफाइनाइट डिवाइड बाय 2 इज इनफाइनाइट. सो Yes, e sir. raised to minus infinite, अपर लिमिट खत्म. माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 2 डालूंगा, 2 will be 1 -1. परफेक्ट. ये हो जाएगा 0. e to the power minus infinite is always 0. माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा e raised to -1 माने कि 1/e. करेक्ट. तो 1/e कैसे से आप फाइंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. समझ आ रहा है सभी को? ड्रॉप अ मैसेज ऑन द चैट बॉक्स राइट नाउ. क्या ये समझ में आया, नहीं आया? जल्दी से अभी के अभी. जितने लोग हैं मीटिंग में, हर कोई ये रिकॉग्नाइज करे कि समझ में आया कि नहीं आया.
Good. Very good. Now, who will help me for the second? पहले फर्स्ट का पूरा सॉल्यूशन दिखा दो एक बार, रुक जाइए. Let me resolve this ink and let me show you the solution of first. ये जो है हमने अभी किया, is it ना? ये that is e to the power -1 and e raised to -1 that is 0.3679. बहुत आसान होगा, वही सारे स्टेप है जो अभी हमने किए, कोई बड़ी बात नहीं है. अब सेकंड के लिए सोच के देखिए एक बार. What is the probability that repair takes at least 11 hours given that its direction exits 8 hours? 8 घंटा लगा मुझे उसको समझाने में, 8 घंटे से भी ज्यादा, कि भाई कैसे रिपेयर करना है, ऐसे रिपेयर करना है, वो नट निकाल दे, वो बोल्ट खोल दे, ऊपर से वो ट्रे नीचे डाल दे, पता नहीं क्या कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं. 8 घंटे तो मैं उसको बता रहा हूं कि तुझे ऐसे रिपेयर करना है. जब मैं बता रहा हूं तब वो रिपेयर नहीं कर रहा है, ऐसे. अब 8 घंटा से ज्यादा मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, डायरेक्शन दे रहा हूं, फिर जाके वो रिपेयर करने बैठा, और वो रिपेयर टाइम कम से कम 11 घंटे का हो, कम से कम 11 घंटे, मान कि 11 घंटे से बड़ा भी हो सकता है, पर कम से कम 11 घंटे का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी. देखिए अब ये तो थोड़ा अलग है, ऐसा तो सर आपने कभी सिखाया नहीं है. अब ये कैसे करेंगे? नाउ फॉर सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे आएगी बात वो गजनी वाली. चलिए देखते हैं. वी नीड टू डील विद वन ऑफ द प्रॉपर्टी which I mentioned in the earlier slide. मैंने एक सेकंड स्लाइड में बोल के रखा था कि this distribution is memory less distribution. ये memory lessness वाला है, इसके पास कुछ मेमोरी है नहीं, ये भूल जा रहा है कि परसों उसके साथ क्या हुआ था, कल उसके साथ क्या हुआ था, 10 मिनट पहले उसके साथ क्या हुआ था. Is it? So what is memory lessness? ये होता क्या है memory lessness? उसको कैसे मैथमेटिकली कैसे यूज करना है? So let's try to understand what is memory lessness property with one of the example, and then we will उसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी कैसे तब्दील करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ. चलिए. सो आई विल बी वंस अगेन ऑन दिस सेम स्लाइड. मैं इसी स्लाइड पे वापस आऊंगा. क्वेश्चन 5 अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन 5 का सेकंड सब क्वेश्चन बाकी है. ये डिस्कस करने के लिए एक चाहिए प्रॉपर्टी, वो क्या है? मेमोरी लेसनेस. चलिए लेके जाता हूँ. मेमोरी लेसनेस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज द मेमोरी लेसनेस? अब we know that, we guys know that exponential distribution is having a connection with poison. उसका poison के साथ कुछ रिश्ता नाता है. क्या रिश्ता है? कि poison का रिवर्स जो है वही तो exponential है, ऐसे ना. और in other words, poison, दो poison process के बीच का जो टाइम है ना, that time is exponential. That time is exponential variate. दो poison process के बीच का टाइम, that is exponential variate, is it? So as we know that exponential variate is time between the poison process. In other words, we can say that exponential variate is inverse, kind of inverse of the poison. पर poison जब हमने सीखा था, when we were dealing with the poison distribution, poison भी कुछ एक additional component था binomial का. binomial सीखा, फिर binomial में कुछ change किया कि भाई binomial में जब probability बहुत ही छोटी हो, the number of times you are repeating the event वो बहुत ही बड़ा हो जाए तो binomial काम नहीं करेगा, तो इसके लिए हमको poison चाहिए. So poison की कुछ requirement थी, कुछ prerequisites थी कि भाई जो events हो रही है वो constant rate पे होनी चाहिए. हर एक इवेंट जो है वो पिछली इवेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. दैट मींस ऑल द इवेंट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. सो जो भी पोइजन की रिक्वायरमेंट थी वही रिक्वायरमेंट होगी एक्सपोनेंशियल की, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इज अ काइंड ऑफ इनवर्स ऑफ पोइजन, तो वो पोइजन के साथ ताल्लुक रखता है. सो लेट मी गिव यू सम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ पोइजन व्हिच इज आल्सो फॉर द एक्सपोनेंशियल. कि क्या है? दो रिक्वायरमेंट है. देखिए, इवेंट्स मस्ट अकर एट द कांस्टेंट रेट. जो भी इवेंट्स है वो कांस्टेंट रेट पे अकर होनी चाहिए. और दूसरी है इवेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. हर एक इवेंट है वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. अब ये दोनों को अगर मैं मर्ज करूं ना तो एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी, उसको बोलेंगे मेमोरी लेसनेस. कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिसके पास ये दोनों है ना, तो वो मेमोरी लेस है. उसकी मेमोरी है ही नहीं. And I'm sure you guys are confused. कैसा कैसे सर, क्या बात कर रहे हो आप? कुछ समझ में नहीं आया? सुनने में अच्छा लगा लेकिन समझ नहीं आ रहा है. Is it like that? So let's have one of the practical example. चलिए हमारे डोमेन में एक एग्जांपल लेते हैं. और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इवेंट्स और ये कांस्टेंट रेट और इंडिपेंडेंट है हर एक इवेंट, ये दोनों को मर्ज करके आप
वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेमोरी लेस हो जाएगा। कैसे होता है चलिए बताता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं। who's the HOD? हमारे HOD का नाम बताओ जल्दी से, कोई एक अनम्यूट करके। हु इज द वर्किंग HOD? मधु शुक्ला मैम। मधु शुक्ला मैम, नजर। अब मधु शुक्ला मैम क्या करती है? सर DBMS पढ़ाते हैं। DBMS पढ़ाते हैं और क्या करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ द ब्रांच। मैनेजमेंट ऑफ द होल ब्रांच, इज इट? यस। मैनेजमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जितना हम सभी को, जितने भी फैकल्टी है, जितने भी बच्चे हैं, सभी को। चलिए आज मधु मैम का काम थोड़ा और बढ़ा दें हम लोग। सपोज HOD start monitoring visit to a मारवाड़ी यूनिवर्सिटी वेबसाइट। हमारे पास एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, जहाँ पे हम लोग सब लॉग इन करते हैं, हमारा स्टाफ वहां पे रहता है। अब मधु मैम आज सुबह चाय पी के बैठ गई और उसने ठान लिया कि भाई चलिए आज मॉनिटर करना है कि हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं। और वो अपना ये मॉनिटरिंग वाला काम 9 बजे से स्टार्ट करिए। कितने बजे से? 9 बजे से, ठीक है। 9 बजे वो चाय का कप लेके बैठ गई कंप्यूटर के सामने, पीसी के सामने। अब वो मॉनिटर करेगी कि कितने विजिटर आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, कितने हिट्स आ रहे हैं, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में मैं आपको 2 अलग सिचुएशन दे रहा हूं, आपको 2 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। केस 1 के लिए, केस 2 के लिए। व्हाट इज केस 1? केस 1 और आई कैन से सीन 1। फर्स्ट सीन क्या है, पहला सीन क्या है? चलिए एक मूवी चल रही है तो सीन देखते हैं। पहला सीन क्या है? इन फर्स्ट सीन वी आर सपोज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ फर्स्ट विजिटर लैंड्स ऑन आवर वेबसाइट बिफोर 9:01 AM। हो सकता है ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि 9:01 से पहले ही पहला विजिटर आ गया। मेघना को लगा चलो भाई आज मुझे देखना है, आज मुझे देना है फैकल्टी को फीडबैक, चलो जाती हूँ 9 बजे सारे फैकल्टी को फीडबैक देके आती हूँ। सो क्वाइट पॉसिबल वन ऑफ अस विल विजिट website exactly before 9:01 AM. So we guys are supposed to find the probability that, what is the probability that first visitor land on our website before 9:01 AM? हो सकता है, फाइंड हो सकता है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, we can do that. This is first case, is it? This is first scene. इसमें हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि 9 बजे से मॉनिटरिंग में स्टार्ट करूं, मधु मैम स्टार्ट करे और 9:01 से पहले पहला विजिटर आ जाए वहां। हो सकता है ना? हो तो सकता है। चल अब सीन, दूसरा सीन क्या है? मधु मैम 9 बजे कप लेके बैठ गई चाय का, 9:20 तक बैठी रही और कोई विजिटर नहीं आया। 9:20 तक नॉट अ सिंगल विजिट यet। 9:20 तक कोई विजिटर नहीं है, एक भी नहीं। None of the visitor is there up to 9:20. अब now this is pre-decided, ये कंडीशन है, ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। 9 बजे से मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी है मैम ने, 9:20 तक कोई नहीं आया। अब what is the probability that a first visitor lands on the मारवाड़ी वेबसाइट before 9:21? 9:21 से पहले पहला विजिटर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए ये 2 अलग अलग केसेस है, 2 अलग अलग सिचुएशन है, 2 अलग अलग सीन है। Let me say this is event A, उसकी probability that is P of A. This is event B, P of B. Now my question towards all of you is that क्या लगता है आपको कौन सी probability बड़ी होगी? क्या P of A बड़ा होगा, P of B बड़ी होगी, क्या होगा? Which of them is higher? यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि 20 मिनट मैंने वेट किए, कोई नहीं आया, अब 21 मिनट में आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। Is it? What you feel? आपको क्या लगता है? Now ball is in your court, you are supposed to reply. अगर सिचुएशन दोनों सीन आपको समझ में नहीं आ रहे तो बताओ मुझे, I can explain it once again. अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी, सीन 1 वाली या सीन 2 वाली? Now it's your time to reply. All of you will reply me on the chat box. आपको क्या लगता है? जय को लगता है P of B बड़ी होगी। क्यों जय, ऐसा क्यों लग रहा है? 20 मिनट हमने वेट की, कोई नहीं आया, अब आ जाए ना सर। 20 मिनट तक कोई नहीं आया तो अब तो आएगा ना। Is it like that?
अरे ये विभूषा देख क्या बोल रही है, बोथ विल बी सेम। दो ही लोग हैं जिसको मेरी बात सुनाई दे रही है, बाकी के सारे लोग मुझे म्यूट मार के बैठे क्या, वॉल्यूम डाउन करके बैठे। मेघना, मेघना हाँ बोल रही है। मेघना तूने म्यूट करके रखा है। अभी तूने हाँ बोला, अभी तूने ना बोला। डिसाइड कर ले क्या बोलना। टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। मेघना अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। खाना खा रही है सर कितनी कोई खाना ऑनलाइन। नहीं खा रही, हर टाइम खाना ही खाती रहती हूँ क्या मैं? मोहम्मद बोल रहा है, देख मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ सर। ऑनलाइन एजुकेशन में ये तो फैसिलिटी है। चल ये छोड़ मेघना, ये बता पी ऑफ ए बड़ी होगी पी ऑफ, तूने तूने पूरी बात सुनी, सीन 1 सीन 2 सब सुना? यस। हाँ सर। बोल क्या लग रहा है तुझे, कौन सी प्रोबेबिलिटी बड़ी होनी चाहिए? सर पीयर, सर दोनों सेम ही होंगे अगर मतलब दोनों अभी तक आए नहीं कोई सिंगल विजिटर। 20 तक कोई नहीं आया था। अब तुझे ऐसा नहीं लगा कि 9-20 तक कोई नहीं आया है तो 9-21 को आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी हो? तो सर क्या पता नहीं आए, पूछ रहा हूँ। जरूरी तो है नहीं कि आए गए। ओके जरूरी नहीं है फिर। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, पी ऑफ ए बड़ी पी ऑफ बी बड़ी है, दोनों सेम? सर दोनों सेम। ओके मोहम्मद तुझे क्या लग रहा है? मोहम्मद। Sir, is it given that before 9:21 nobody has arrived? It is sure, is it? हाँ 9:20 से पहले कोई नहीं आया था। यहाँ पे 9 सीन 2 में 9:20 से पहले कोई नहीं आया है। फर्स्ट विजिटर की बात हो रही है कि फर्स्ट तो विजिटर फिर हमारी वेबसाइट पे। सर ये तो फिर श्योर इवेंट हो गई ना, मतलब आगे वाले इंटरवल में तो आया ही नहीं तो उसकी तो जीरो ही होगी। तो जो बची वो प्रोबेबिलिटी बाद में ही होगी। तो आई थिंक पी ऑफ बी, व्हाट आपको सजेस्ट लग पी रहा है? ऑफ बी फर्स्ट में सी। ठीक है तो आपको लग रहा है पी ऑफ बी। मैं तो मोहम्मद से पूछ रहा हूँ, यश ने बोला पी ऑफ बी। मोहम्मद तू बता। सर सेम लग रहा है, लग क्यों रहा है? डिस्कस कर मुझसे, क्यों लग रहा है बता। व्हाट अबाउट सुशील? सुशील, भवदीप? If वेबसाइट opens at 9, हाँ वेबसाइट ऐसा ही मान ले चल, वेबसाइट 9 बजे ही चालू हुई है तो तुझे लग रहा है पी ऑफ ए बड़ी होगी? ओहो। देखिए तो मेरे पास तीनों तरीके के आंसर है। कोई बोल रहा है पी ऑफ बी बड़ी है, कोई बोल रहा है पी ऑफ ए बड़ा है, कोई बोल रहा है दोनों सेम है। लेट मी शो यू, बोथ दिस आर सेम, डिट्टो सेम, कोई फर्क नहीं रहेगा दोनों में। अरे सर क्या बात कर रहे हो, 9:20 तक कोई नहीं आया तो 9:21 पे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ नहीं जाएगी? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द वे दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज मेमोरीलेस। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि पिछली बार क्या हुआ था, पास्ट में वो इवेंट अगर हुई थी कि नहीं हुई थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो बोथ दिस विल बी डिटो सेम। दिस इज द ओनली रीजन। ये प्रैक्टिकल में भी आप देख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 बजे मैं बैठू, 9:01 को पहला कस्टमर आ जाए, हो सकता है, आ सकता है ना भाई, आ सकता है। 9:20 तक कोई नहीं आया तो इट्स ओके। अब 9:20 से 9:21 के बीच में, 9:20 से 9:21 के बीच में एक ही तो मिनट का टाइम है, जो यहाँ पे भी एक ही मिनट का टाइम था। सो प्रोबेबिलिटी विल बी लिटरली सेम। सो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पास में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड मेमोरीलेस। अब इसको मुझे मैथमेटिकली अगर बताना है तो कैसे बताऊंगा मैं? देखिए, the exponential distribution has memoryless or the forgetfulness property. This is important, this property indicates that the distribution is independent of its part. उसके parts independent है. That means the future happening of the event has no relation to whether or not this event has occurred in the past. पास्ट में ये इवेंट अगर हुई है कि नहीं हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है फ्यूचर के साथ। अगर इस प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली फॉर्मूला में अगर डालना है तो कैसे डालेंगे? दिस प्रॉपर्टी इज एज फॉलोज। कैसे?
let me define some of the notation. X, suppose X is my exponential variate. S and T, both these are two positive real number. Any of the two positive real number, don't worry about this notation कि S क्या है T क्या है, बस दो positive real number है, ठीक है, कोई भी. इट्स नॉट कंपलसरी कि आप S और T का यूज करें. अगर आपको मजा आए तो आप M एंड N यूज कर सकते हैं, आपको मजा आया L और M यूज कर सकते हैं, आपको मजा आया आप U और V यूज कर सकते हैं. बस ये दो पॉजिटिव रियल नंबर है. अब इसका मतलब ये होगा कि प्रोवाइड दैट S plus T, if you are finding that probably that X is greater than S plus T under the condition X is already exceed S, then that probability will be literally the difference of both this S plus T और S का difference क्या होगा T, both this will be ditto same. इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अब थोड़ा सा कंफ्यूज आपको रहेगा कि एस टी क्या बोल रहे हैं सर, ये क्या है. लेट मी कनेक्ट दिस पर्टिकुलर विद एग्जांपल 5. मैं फिर से आपको लेके आऊंगा इसी स्लाइड पे. रुक जाइए एक बार ये याद रख लीजिए. प्रोवाइडेड दैट x is greater than s plus t under the condition x is greater than s is equals to probability that x is greater than t. Now let's continue with our example 5 too, जहाँ पे मैंने रोक के रखा था वो पूरा एक्सप्लेनेशन वहीं पे लेके जा रहा हूँ. देखिए दिस वाज द स्लाइड. एग्जांपल 5 में बात कर रहे थे, क्वेश्चन 1 हो चुका है, क्वेश्चन 2 की बात करनी है. अब मीन लैम्बडा की वैल्यू है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. अब सेकंड क्वेश्चन के लिए व्हाट आई एम डूइंग, प्रोबेबिलिटी दैट द रिपेयर टाइम टेक्स एटलीस्ट 11 आवर्स, कम से कम 11 घंटे लगे रिपेयर करने में. अंडर द कंडीशन इट्स डायरेक्शन एक्सिस 8 आवर्स, उसको समझाने में 8 घंटे से भी ज्यादा टाइम मुझे लगा है. उसके बाद रिपेयर का टाइम 11 घंटे कम से कम हो, उसको अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना है तो आई कैन राइट लाइक दिस. What I'm finding probably that x is greater than equals to 11. What is x? X is the repair time. Repair time 11 घंटे से बड़ा होना चाहिए. Under the condition that x is greater than 8. Now this x is actually the direction time. x जो है वो 8 से भी बड़ा है. This is the condition. तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ उसको, इन दोनों का डिफरेंस 11 और 8 का डिफरेंस मानी कि 3, मानी कि जो मैं डायरेक्शन बोल रहा हूँ उसको डायरेक्शन, जितना भी टाइम उसको डायरेक्शन दे रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. हाँ, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा सर डायरेक्शन आप उसको गाइड कर रहे हो तब टाइम तो जा रहा है, पर उस टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. जैसे विजिटर वो पिछले 20 मिनट में कोई विजिटर नहीं आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. द सिमिलर वे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस विल बी डिट्टो सेम एज p of x is greater than 3. एंड वंस वी आर क्लियर कि वी आर फाइंडिंग p of x is greater than 3, अगर ये आ गया हमारे पास तो बहुत ही आसान है. नाउ वी आर जस्ट लुकिंग फॉर 3 to सॉरी अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, रुक जा. वंस वी हैविंग दिस तब तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही आसान हो जाएगा. वी आर जस्ट फाइंडिंग प्रोबेबली दैट 3 to infinite इंटीग्रेशन रनिंग और 3 to infinite वही फंक्शन जो है 1/2 e to the power minus x by 2 dx. ये इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने 2-3 बार अभी किया. लेट मी शो यू द होल सॉल्यूशन एंड देन लेट मी नो क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. बताओ, ये बताइए. Time starts now. I'm giving you 1 minute. Please go through it. Please go through it. नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताओ, समझ में आ रहा है तो भी बताओ. All of you must reply on the chat box after 1 minute.
ओके, जय को समझ में आ रहा है, निधि इज गेटिंग दिस, मेघना इज गेटिंग दिस, सुशील इज गेटिंग दिस, बाकी के लोग गॉट इट? यस, को समझ में आ गया। व्हाट अबाउट प्रियंक, मोहम्मद, जानवी, दिव्य, आदित्य, प्रदीप, यस, ईशा, good. Good. So this was the story related to. Okay, yes. This was the story related to exponential distribution. ये एक example 5. Now I'm having 2-3 different examples for you. Let me stop this particular slide and let me share the other one. Just give me 1 minute. Yes. Once again, my screen will be visible to all of you within 2-3 seconds. Yes, here it is. This is an exercise related to exercise for the exponential distribution that I will share with the WhatsApp group even. But abhi ke liye, take help from the screen. First, second, third. Okay, I just need the solution for second question. Go through this particular question. A simple question regarding to the exponential distribution. हर कोई बच्चा second question solve करेगा. I'm giving you 10 minutes to solve this second question. There is a question related to exponential distribution. हर एक बच्चा ठीक से इसको solve करेगा properly. लैम्ब्डा की वैल्यू, फिर वो फॉर्मूला निकालना है, ठीक से करना है इंटीग्रेशन और आंसर मुझे देना है. I'm giving you 10 minutes. Okay.